Today we have with us a remarkable voice in wildlife conservation, Mr. Nitin Desai. With over 3 decades of experience, and he has been at the forefront fighting with wildlife crime in India. From field investigation to international advocacy, his work has shaped conservation efforts on the ground. Let's hear directly from him about his journey, insights, and challenges in protecting our wild heritage. Welcome, sir, to our channel, Twinning with Twins, and this is our forthcoming episode. So, we welcome you on this episode. Thank you for having me here. Hello, sir, and welcome to our episode of Twinning with Twins. Our curiosity towards wildlife conservation brought us together on this table, and we would like to know more about your experience and your background towards the betterment of the wildlife sanctuary. Thank you for having me here. To give you my background, I am a Nagpurian, was born here, brought up here, educated here. I have a science background. I've done my graduation with biology as main subject. And after graduation, I thought of, working somewhere. I tried to get some jobs in a couple of pharmaceutical corporate companies. I worked there for about 1.5 years, 2 years. Then I tried to set up a business. In those days, some of my friends used to go to the forest regularly just for fun, and they used to roam around. Some used to do bird watching and all that. And they always used to, kind of pester me, tum bhi chalo, kya karte ho yahan reh ke? There's nothing in this city. And I was quite reluctant. I was not interested in all this jungle business. पर उन्होंने एक दिन दे प्रिवेल्ड अपॉन मी और उन्होंने मुझे लेके गए वो. तो वी वेंट टू पेंच और घूमे वगैरह हम. अच्छा, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड I think the first or second trip only we went. I went on a motorcycle with one of my friends on our own. We didn't know the roads. We didn't know nothing. Just went there. In those days कोई जाता नहीं था जंगल में, यानी सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स और गांव के लोग 2-4 ऐसे कोई जाते थे. टूरिज्म कुछ हुआ नहीं था. किस साल की बात होगी ये हम 87 88 की वगैरह बात कर रहे हैं. और शुरुआती दौर में हम ऐसी किसी अभी जो पेंच नेशनल टाइगर रिजर्व है उसके एक एरिया में गए थे. तो उस समय वो इट वाज ओनली अ नेशनल पार्क. और एक वाटर होल पे हमने वी स्पेंट एन इवनिंग ऑन अ ट्री, अप इन अ ट्री. गाड़ियाँ वाड़ी छुपा के हमारे मोटरसाइकिल, वी सेट अप ऑन अ ट्री एंड वी वर वेरी लकी टू सी अ पेयर ऑफ टाइगर्स. वाओ. एंड लॉट ऑफ अलार्म. इट वाज क्वाइट मैजिकल इवनिंग. तब रास्ते भी नहीं होंगे? नहीं, रास्ते बहुत खराब हुआ करते थे और कोई रास्ता भटक गए तो बताने वाला भी नहीं मिलता. जीपीएस भी नहीं था. जीपीएस था, कुछ नहीं था. कहाँ से आए और कहाँ कुछ जाना नहीं, है. कुछ मोबाइल भी नहीं थे. करेक्ट. कुछ भी नहीं था. तो हम क्या करते थे, हम उस जमाने में हम कपड़े की छोटे छोटे टुकड़े रखते थे साथ में, और जहाँ रोड टर्न है या क्रॉसिंग है, पगडंडी से मोटरसाइकिल चलाते थे. तो वहाँ पे भटक न जाए इसलिए हम वो यहाँ से आए इसलिए पेड़ को एक कपड़ा बांध देते थे. तो इवन इन द हेडलाइट एट नाइट यू कैन सी दैट यू हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न, यू हैव टू टेक अ राइट टर्न, देन यू एंड अप इन सम विलेज और प्लेस वेयर यू हैव टू गो बैक. इंटरेस्टिंग. तो ये शुरुआत वहाँ से हुई. 1990 में थोड़ा सा सीरियस एफर्ट हुआ कि आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड WWF इन नागपुर. दे हैड अ नागपुर चैप्टर. और मैं और मेरा एक मित्र है, हमने दोनों ने मिलके एक 90 to 93 ये 3 साल में हमने वी सर्वेड वन पर्टिकुलर एरिया जो अभी पेंच टाइगर रिजर्व का बफर एरिया कहलाता है. तो लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था. उसको हमने सर्वे किया, वहाँ पे 2-3 बार टाइगर सेंसस एन्यूमरेशन किया और वाटर होल्स किए, हम काउंट किए, हमने बर्ड लिस्ट बनाई, हमने प्लांट स्पीसीज की लिस्ट बनाई और काफ़ी मेहनत की हमने. ऑल दैट ऑन अ बीटन अप ESD मोटरसाइकिल. We had no resources. We used to earn money. We used to spend the money in jungle only. Or we had no sponsors or anything. The WWF gave us some meager, support money, but that was not enough. And we made a fantastic report about it and proposed to the government that इसको एक अभयारण्य बनाया जाए because the area merits protection. So the government took 17 sweet years to get that area notified as a sanctuary. Now it is called the Mansingh Dev Sanctuary, which you go Kurusapar, Pauni, Kubala, Nagalwadi, all these gates, they lead to that area.
And the real turn came in 1997-98 when Maharashtra Forest Department had organized a big function of destroying old wildlife trophies, tiger skins, leopard skins, and old trophies. And for that function, they had invited a very leading personality of wildlife conservation in the country, Miss Belinda Wright. I happened to meet her in that function. And we instantly developed a good rapport. She is the founder, CEO of WPSI, Wildlife Protection Society of India. She becomes your inspiration. Yeah, we sat together and she asked me, what do you do for wildlife? I said, I leave wildlife. I just love going to the jungle and I just love going after the tigers, and I eat wildlife, sleep wildlife, I do only wildlife. So she was pretty impressed and she said, we want people like you, why don't you join us? So in 98, I joined WPSI. I'm still with WPSI. Now I'm in charge of the Central India activity. And that's it. It has been a fantastic journey. So जो function आप कह रहे हैं, वो exactly क्या था? हाँ, क्या अगर उसको देखा जाए तो बहुत सारी ट्रॉफीज़ लोगों के पास जमा थी। ट्रॉफी यानी क्या होता है कि टाइगर हंट हुआ करते थे पुराने ज़माने में, लोगों के पास स्किन्स थी, जो कई बार स्किन्स इलीगली जब्त हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों से जब्त कराई थी, उनके पास लाइसेंस नहीं था, या पोचिंग की स्किन थी, या जो भी इलीगल ट्रॉफीज़ थी, उसका बहुत बड़ा स्टॉक पाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जमा था। So as a mark of kind of protest and a message to be given to the society at large, कि this is not good, it's not very in thing to have a dead animal skin in your house as a prized possession. इसको इतना अच्छे नज़र से सब मत देखो, इसको ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो एक समाज को मैसेज देने के लिए उन्होंने वो जलाया। हाँ, तो वो जलाने का उन्होंने काफ़ी पब्लिक ऐसा एक प्रोग्राम किया था, और वो प्रोग्राम में उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था उसको। तो उसमें कोई तो भी एक ल्यूमिनरी होना चाहिए, इसलिए बेलिंडा को बुलाया। सो हम आपके बातों से पता चल रहा है कि पहले बहुत हंट हुआ करते थे। पहले बहुत हंट हुआ करते थे। तो इसके पीछे कोई रूल्स रेगुलेशंस या कोई लॉज थे या कुछ ऐसा कुछ रूल तो होगा ना कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल इट वाज परमिटेबल बाय द गवर्नमेंट, और What is the sense and what is the history behind all these things? हाँ, हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री, अगर हम पुरानी हिस्ट्री बात करेंगे तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हिंदुस्तान का और कंजर्वेशन का नाता बहुत पुराना है, देवी देवता के ज़माने से पुराना नाता है। आप इतने सारे देवी देवताओं को देखिए, हर देवी देवता को कोई ना कोई पेट प्राणी या पक्षी उसका वाहन या उसके साथ रहता है, राइट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल टू वाइल्ड एनिमल्स। सब यानी सांपों से लेकर तो बाघों तक, शेरों तक, सबके कोई ना कोई एक एफिलिएटेड गॉड है। तो उसको इसीलिए दिया, इसी नज़र से देखा गया कि आप इसको हार्म नहीं करेंगे। हाँ, आप लोगों को हार्म करने से बचाना है। तो आप बाघ को हाथ नहीं लगाएंगे, दुर्गा देवी नाराज हो जाएगी। आप सिंह को मारेंगे तो ये देवी नाराज हो जाएंगी। आप तो ये इट इज़ ऑल वेल एंट्रेंच्ड इन एंड इट हैज़ डीप रूट्स इन द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। पर मॉडर्न टाइम्स का अगर देखेंगे तो एक्चुअली मॉडर्न डेज में कंजर्वेशन का हमको हिस्ट्री मिलती है 125-150 साल के आसपास वो शुरू हुई है, इन मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं। तो उसके पहले तो कोई अवेयरनेस नहीं था। उसके पहले तो क्या था कि देखिए 700 साल का 800 साल का इतिहास हम देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट था हिंदुस्तान में। बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों को तो ये बड़ी खान लगी कि अरे दिस इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट टू गो एंड हंट अ टाइगर। सो यू लुक एट द ओल्ड शिकार रिकॉर्ड्स। ऐसी कंपनीज थी उस ज़माने में 1870, 1890, 1900 के आसपास, उस पीरियड में, कि जो शिकार का आयोजन करते थे। एक स्पोर्ट हुआ करता था। हाँ, टूर्नामेंट बोले, पैसे भरते थे लोग, कंपनी के फेस्टिवल, और एक एक शिकार में लोगों ने 40-40 बाघ मारे हैं, एक एक हंट। और ऐसे बड़े बड़े क्रूएल नाउ। हाँ, इन टुडेज टर्म्स इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बहुत ही शॉकिंग था। तब क्या काउंट रहा होगा उस जमाने में टाइगर्स का अपने यहाँ? हाँ, तो ये तब नहीं, काउंट के बारे में हम बात करेंगे, पर लेट मी फिनिश द फर्स्ट पॉइंट कि ये शुरू कहाँ से हुआ। करेक्ट। तो 19
20s में वगैरह ब्रिटिश लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर इस तरीके से अनकंट्रोल्ड शिकार चलती रही तो बाघ नष्ट हो जाएंगे। और लोगों के पास गन्स थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, एनफील्ड जैसी राइफलें आई जो दूर तक मार कर सकती थी, 4 व्हील ड्राइव जीप्स आई। तो जो सदन लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको ये शौक था, जमींदार राजा महाराजा उस जमाने के, वो एक मर्दानगी का एक, इट वॉज माचो पॉइंट कि आई गो ऑन अ टाइगर हंट। टूरिज्म भी इसी से चल रहा था कि हिंदुस्तान में गए, ताजमहल नहीं देखा, बाघ नहीं मारा, तो गए कोई हिंदुस्तान में। तो उन्होंने फिर नियम बनाने, पहले नियम शिकार के अंग्रेजों ने बनाए। उन्होंने नियमों को ऐसा ड्राफ्ट किया कि बेस पॉपुलेशन सेफ रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ते रहेगी, और लोग उसमें से एक इकोनॉमी बनेगी, एक इकोनॉमिक्स इन इटसेल्फ, कि आप बियॉन्ड रिजनरेशन जो फीमेल्स है उनको मारो, जो बहुत बूढ़े मेल्स हो चुके हैं उनको मारो। अब उसमें से फ़ी लगेंगे आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, वो चेंज होता रहा। और पीपल इज टू गो सम, दे वर शूटिंग ब्लॉक्स राइट इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, देयर वर शूटिंग ब्लॉक्स इन सालेघाट, देयर वर शूटिंग ब्लॉक इन नागलवाड़ी। दीज वर ऑल लाइक, इफ यू लुक एट द ओल्ड रिकॉर्ड्स, ये तब क्या 8 आने और 1 रुपया वगैरह दे के लोग सांबर वांबर मारते थे। 15-20 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मार के टाइगर्स मारने के रिकॉर्ड है। तो उस समय वो प्राइड की बात थी। पर हुआ क्या कि 1947 में आज़ादी आई। आज़ादी के बाद लगभग 30 साल, 30 या मान लीजिए 25-26 साल, हमारे यहाँ काफ़ी हद तक इस सब्जेक्ट में लॉलेसनेस था, क्योंकि हम एक नया देश थे, भूखे थे, हमारे पास अनाज नहीं था, लोगों को, गवर्नमेंट को लोगों को खाना खिलाना था, ये कहाँ नेचर कंजर्वेशन वगैरह वॉज बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम था। उस समय बॉम्बे फॉरेस्ट मैनुअल हुआ था, 1950-52 में बॉम्बे फॉरेस्ट मैनुअल था, कुछ नियम उसमें भी बने थे ट्रेड के, हंटिंग के वगैरह, पर उस पर इतनी सख्ती नहीं थी जितनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में आई। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई कैसे, इसके बारे में आप थोड़ा सा गौर करेंगे। हुआ यह था कि 1969 में हमारी जो फाउंडर है बेलिंडा राइट, उनकी माता जी हैं एनी आयरन राइट, ये एक बहुत फेमस उस ज़माने की टाइगर कंजर्वेशनिस्ट थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थी, और ये फाउंडर थी WWF की। उन्होंने WWF इंडिया को हिंदुस्तान में उन्होंने लाया, और वो कलकत्ता में रहती थी, और उन्होंने एक अपना इन्वेस्टिगेशंस वो पर्सनली कुछ करती थी। उनको पता चला कि हिंदुस्तान में उस साल 68 या 69, आई एम नॉट श्योर, उस पीरियड में ऑफिशियली टाइगर मारने के परमिट दिए गए थे 500 हंटिंग के, और टाइगर स्किन्स एक्सपोर्ट करने के कस्टम्स के परमिट मिले थे 3000। तो उनको ध्यान में आया कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 500 टाइगर मार रहे हैं और भेज रहे हैं 3000, तो 2500 टाइगर्स आए कहाँ से? तो शी रियलाइज दे आर ऑल बाय poachers. So she went around in Kolkata, used to have a big fur market in those days. तो उन्होंने देखा कि stock piles of illegally procured tiger skins and leopard skins were, with some of the local criminals, wildlife criminals. तो she reported this matter to the then Prime Minister, Honorable late श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपने अभी कुछ किया नहीं तो शायद टाइगर बचेंगे नहीं। तो इंदिरा गांधी स्टेप्ड इन, और उन्होंने एक कमेटी बनाई, और बड़े बड़े लोग थे उसमें, यानी जो एलाइट एजुकेटेड एक थिंक टैंक था इस विषय का, वो इकट्ठा आया। डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह साहब जैसे लोग, भानु सिंह चावड़ा जैसे साहब लोग, करण सिंह साहब जैसे लोग, ये लोग एक साथ आए, और इन्होंने वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनाया। ये एनी आयरन राइट वॉज द एक्चुअली पायनियर ऑफ दैट। उन्होंने वो ड्राफ्ट बना के दिया, फिर वो एक्ट नोटिफाई हुआ, 1972 में एक्ट आया। 73 में टाइगर बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, और 1974 में टाइगर के हंटिंग पे पूरी तरह पाबंदी आई। तो 1972-73 से ये प्रयास जो शुरू हुआ 9 टाइगर रिजर्व से लेकर, तब टाइगर पॉपुलेशन थी शायद 1800 के आसपास। बाद में 1980 में टाइगर पॉपुलेशन 4000 हुई, ऐसा कहना है लोगों का, पर इस पे हम ज़्यादा तथ्य मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस समय की जो टाइगर काउंटिंग की जो प्रोसीजर्स मेथड्स थी वो काफ़ी एरोनियस थी, काफ़ी, यानी उनमें गलतियाँ थी, उनमें वो साइंटिफिकली साउंड मेथड नहीं थी। और आज काफ़ी साइंटिफिक है। और आज का फिगर क्या है? नहीं, वी विल कम टू दैट, प्रोग्रेशन में जाएंगे हम। 1980 में ये 4000 क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। 1980s में ये फिगर 4000 मानी जाती थी, पर तब हुआ क्या था, तब क्या मांग थी कि ये इलीगली मारे जाने वाले टाइगर्स तब भी चल रहे थे,
तब भी पोचिंग चल ही रहा था। तब के थ्रेट्स क्या थे? तब के थ्रेट्स थे, एक तो हैबिटेट जो था वो नष्ट हो रहा था, दूसरा अनकंट्रोल्ड पोचिंग था। क्यों? क्योंकि तब डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। यूरोपियन मार्केट्स में वहाँ की लेडीज, बड़े घर के लोग, रईस लोग टाइगर या लेपर्ड की पेल्ट्स का कोट वोट ड्रेस वेस पहन के, इट इज टू बी ए फैशन स्टेटमेंट। और हम प्रोवाइड कर रहे थे। हाँ, हम प्रोवाइड कर रहे थे, पर उसमें वहाँ फिर सोशल अवेकनिंग आया, लोगों को बड़ा वहाँ एजुकेशन का अच्छा है, तब भी अच्छा था, लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये क्या गंदगी है ये सब। तो पीपल स्टार्टेड स्पिटिंग ऑन दोज वुमेन, दे यूज्ड टू स्टार्ट थ्रोइंग इंक ऑन देम कि तुम ये क्या पहन के जा रही हो, यू आर वेयरिंग अ टाइगर, यू आर वेयरिंग अ मिंक, और यू आर वेयरिंग सम रेयर वाइल्ड एनिमल पेल्ट। तो वो वहाँ डिमांड बंद हो गई। ऑफ कोर्स लॉ भी था, उन्होंने ये बंद किया था। और फिर 1995 के आसपास अचानक फिर से टाइगर पोचिंग बहुत बढ़ गया। वो बढ़ गया क्योंकि चाइना में टाइगर बोन्स की डिमांड बढ़ गई, और वो टाइगर बोन की डिमांड जैसे बढ़ी वैसे यहाँ पे टाइगर पोचिंग फिर राइज हो गया। तो ये सारा ओवर द इयर्स हम देखेंगे 30 साल 40 साल में, इट इज ऑल वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कहीं भी बाहर के देश में डिमांड पैदा होती है, उसको सप्लाई करने के लिए अपने पोचर्स, इंडियन पोचर्स एक्टिव हो जाते हैं। और you mean illegal trade? Yeah, This is how it works? This is how it works. It is completely a demand and supply thing. It is not opportunistic. There are very organized gangs in that. We'll come to that. पर ये प्रोग्रेशन जो है 2006 तक चला। 2006 तक टाइगर फिगर्स के बारे में बहुत एम्बिग्यूटी थी, क्योंकि तब तक कोई जंगल में रास्ते पे टाइगर चलता हुआ गया है, उसके पगमार्क के निशान को लेकर उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में कास्ट करके उसका एनालिसिस करके फिर एक नंबर डिसाइड करना इज़ नॉट वेरी साइंटिफिक। उसमें बहुत एरर को स्कोप था, इसलिए फिगर्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। पर जब 2006 में जब ये टाइगर सेंसस एक्चुअली कैमरा ट्रैप और मॉडर्न टेक्निक के साथ हुआ, तब पता चला कि भारत में शायद 1500 से कम टाइगर बचे। Oh my God. That was the turning point, real turning point, which science brought, and which all along we have been saying for years, कि poaching is a real serious threat. Because why? At WPSI, where I work, which Belinda founded, which Belinda started, and which I joined in 1998, we have always believed that this is the most direct threat to tigers. There are other threats. I mean, I agree. Encroachment on forest, competition with humans, depletion, destruction of habitat, destruction of corridors. There is no available areas for tigers to go from one area to another area. The corridors are many places broken. ये सारे problem है, but the most direct threat is poaching, because the poachers, for whatever reasons they are doing, they are removing the core subject of your conservation. My God. This is the main, this is the, you know, I mean, this is the purpose of conservation. जो बचाने के लिए हम इतना बड़ा गवर्नमेंट एफर्ट कर रहा है, उस सब्जेक्ट को ही कोई निकाल के लेके जा रहा है, तो क्या मतलब? That is why we believe that poaching is the most hard-hitting threat. So एक क्वेश्चन ऐसा है कि बफर में जो हमको दिखते हैं सफारीज में टाइगर्स, उसके अलावा भी टाइगर्स हैं? बहुत ज़्यादा टाइगर्स है। You will not believe, हिंदुस्तान में जितने टाइगर रिजर्व्स है, अगर हम देखेंगे 1973 में शुरुआत हुई 9 टाइगर रिजर्व से, आज 58 टाइगर रिजर्व्स है। आज हिंदुस्तान में मान लीजिए 3000 के ऊपर टाइगर्स है, पर ये 3000 टाइगर्स जो है, इसमें कि 50% टाइगर्स, ऑलमोस्ट मोर मे बी मोर, आर लिविंग आउटसाइड द नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व्स। दे आर लिविंग इन ऑर्डिनरी फॉरेस्ट, लाइक टेरिटोरियल, इसको सामान्य जंगल बोला जाता है, या वन विकास निगम का जंगल बोला जाता है। ऐसे जंगलों में बहुत भाग है। तो मोर देन 50% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इज आउटसाइड द नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ओके, सो हम भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए अभी तक? नहीं, हम पहुंच पाने की बात नहीं है। देखिए, वो खुले जंगल में घूम रहे हैं। पार्क भी खुले जंगल है, पार्कों के फेंस तो है नहीं, वो भी खुले जंगल है। इट इज अ कंटिन्यूअस फॉरेस्ट विद द टेरिटरी एडजॉइनिंग टेरिटोरियल डिवीजन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व एंड अ फॉरेस्ट? अ रिजर्व फॉरेस्ट, no, reserve forest, all forests are reserve forest mostly, but a tiger reserve will be, the core area will be ideally a national park, which will be a inviolate area जहाँ कोई गांव नहीं होंगे, which will be like the sanctorum of a tiger reserve. उसके आजू बाजू का कुछ एरिया होगा, वो बफर होगा, उसमें विलेजेस हो सकते हैं, और वो विलेजेस जो है दे को इनहेबिट द एरिया विथ टाइगर्स। ठीक है, तो उसके बाहर का जो जंगल है वो सामान्य का जंगल है।
मेरे नॉलेज के लिए अगर हम कहें कि इंडिया में जितने जंगल है, जी, मतलब जितना एरिया जंगल ऑक्यूपाई करता है, हाँ, वो पूरा नेशनल रिजर्व। नहीं, नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया के लैंड का मात्र 2% एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज में है, ओनली 2%। सो अगर हम बोलते हैं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट covered in India Yeah, is not tiger reserve. is not tiger Not reserve. at all. Not at all. Tiger. We have a very vast forest, which doesn't have any protected areas. Protected areas are a fraction of the total forest cover. But that is not important. What is important is if you look at what is happening today in tiger conservation. We have 58 tiger reserves, but there are more than 13 or 14 tiger reserves which have either zero or tiger population in single digits. Now the government is spending monumental amounts of money in conservation or saving those areas and bringing up the tiger population there. So you are saying that China में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है. So ये ट्रेड एक्चुअली होता कहाँ से है and how poaching works in India? That's a good question. ऐसा है कि अगर पोचर्स को हम देखें तो इनको हम 2 कैटेगरी में देख सकते हैं. पोचिंग बहुत कॉमन है इंडिया में. एक तो लोकल पोचर्स रहते हैं जो छोटा मोटा तार लगा के, फांसे लगा के, फंदे लगा के हर्बीवोर्स यानी तृणभोजी प्राणियों की शिकार करते हैं. ये मांस के लिए, मटन के लिए, लोकल कंजम्पशन के लिए हर गांव में पोचर्स है. पर असली समस्या ऑर्गेनाइज पोचर्स की है. हिंदुस्तान में 2 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं. आई कांट टेक देयर नेम्स बिकॉज दैट मे अट्रैक्ट लायबल. पर 2 ऐसे प्लेसेस है जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. एक तो कटनी, विल लेट अस कॉल देम कटनी गैंग्स, एंड द अदर प्लेस इज हरियाणा गैंग्स. ये कटनी और हरियाणा गैंग्स के जो लोग हैं ये ट्रेडिशनल पोचर्स हैं. इनके बाप दादा भी यही करते थे, इनके पुरखों से ये लोग यही करते आए हैं. और ये बीइंग ट्रेडिशनल पोचर्स, इनको हिंदुस्तान का टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा मालूम है. दे परफेक्टली नो कौन से जंगल में कौन से सीजन में जाना है, कौन से गांव में कैंप करना है, वहाँ से नियरेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पड़ेगा, वहाँ टाइगर्स कहाँ घूमते हैं, वहाँ अगर पार्क है तो पार्क के कोर एरिया में टाइगर मारना है तो कैसे मारना पड़ेगा, वहाँ का प्रोटेक्शन का क्वालिटी कैसा है, ये सब उनको पता है. दे आर माइंड यू, दे आर इलिटरेट अंगूठा छाप पीपल. उनको दे आर नॉट एजुकेटेड, but they have good sense of smell. they are super smart. They're super smart. This is traditional knowledge. वो करते क्या है, their simple modus operandi is very well known now probably, at least to the enforcement agencies. पर for your audience I am telling कि जनरली एक गैंग में 5-6 भाइयों की गैंग रहती है. 5-6 मर्द, 5-6 उनकी औरतें, 2-4 बूढ़े वाले लोग और उनके 2-4-5 बच्चे. 18 से 20-22 लोगों की गैंग रहेगी. ये गैंग जैसे सेंट्रल इंडिया में ड्राई सीजन शुरू होता है, दशहरे के बाद शुरू होता है. और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. दिस इज आई एम टेलिंग यू व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड आउट थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड लुकिंग एट सो मेनी केसेस इन द पास्ट. हिंदुस्तान में 4 मेजर टाइगर लैंडस्केप्स है. ठीक है, एक नॉर्थ ईस्ट, एक अपना गैंजेटिक प्लेन्स, एक सेंट्रल इंडिया, एक नीलगिरीज. ठीक है, और सुंदरबंस. सुंदरबंस में टाइगर पोचिंग करना, ऑर्गेनाइज टाइगर पोचिंग इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ इट्स ऑल मडी एंड स्लश. साउथ इंडियन टाइगर्स, देयर पेल्ट इज क्वाइट डार्क. नॉर्थ इंडियन टाइगर्स, द सबक्यूटेनस एपिडर्मल फैट इज वेरी थिक. तो टाइगर और हेयर लेंथ जो है बड़ा बहुत लंबा रहता है. और हिल्स है, ओवरलैपिंग टेरिटरी है, एलिफेंट्स के साथ शेयर हो रहा है. तो टाइगर मारने के लिए जाएंगे, पता नहीं हाथी आ गया, वो हाथी आपका क्या कर लेगा, तो पोचर्स के लिए वो सेफ नहीं है. हालांकि कुछ गैंग्स वहाँ भी जाती है, पर मेन उनका एरिया है सेंट्रल इंडिया. क्यों? क्योंकि सेंट्रल इंडिया में मेजॉरिटी फॉरेस्ट ड्राई डिसिडियस है. जैसे ड्राई सीजन शुरू हो गया तो पोचर्स को टाइगर मूवमेंट लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है. और टाइगर्स भी डेफिनेट मूवमेंट है. पानी पे जाना है तो कौन से रास्ते से जाएंगे, टेरिटरी टाइगर का कहाँ है, वहाँ पेट्रोल करते रहेगा टाइगर, उसका जो भी 5-10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वहीं घूमते रहेगा. तो ये उनको टाइगर इकोलॉजी बहुत अच्छी तरह मालूम है, कहाँ जाके ढूंढना है. वहाँ जाएंगे जहाँ टाइगर को मूवमेंट आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे पर्टिकुलरली मेल को टारगेट करेंगे, फीमेल्स को टारगेट जनरली नहीं करेंगे.
क्योंकि फीमेल को टारगेट किया तो उनको आने वाले फिर दे कांट व्हाई डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री ना, तो दे विल गो आफ्टर अ मेल टाइगर को आइडेंटिफाई किया इस पर्टिकुलर वाटर होल पे, वो हर तीसरे दिन दूसरे दिन आता है, तो पूनम की रात को जनरली सिलेक्ट करेंगे, दे विल चूज अ फुल मून नाइट, और वो वाटर होल जहाँ टाइगर्स आते हैं, वो मेल टाइगर आता है पानी पीने के लिए, वहाँ रात को खड़े रह के विजुलाइज करेंगे कि आज रात पूनम की रात है, रात को 8 बजे चांद का रहेगा, टाइगर मूवमेंट कितने बजे होगी, इस पगडंडी जिस पगडंडी से टाइगर आने वाला है वहाँ पे सबसे घनी छाया है कहाँ कहाँ है, उस घनी छायाओं में वो अपने स्पेशल किस्म के उनके कुड़के होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, उनको हम लेग होल्ड ट्रैप्स बोलेंगे। वो लेग होल्ड ट्रैप्स जमीन के जस्ट लेवल के नीचे उसको फिट करेंगे वो। और इसी टाइगर्स आर वेरी स्मार्ट एनिमल्स इन अ वे, दे आर अपेक्स प्रेडेटर्स। टाइगर्स को बुद्धू बनाना आसान नहीं है। आप सादे जंगल में जाके मचान पे बैठेंगे, नहीं आएगा टाइगर, वो आपको दूर से देख लेगा, सूंघ लेगा कि यहाँ कोई नया बैठा है। आप एक नया कैमरा ट्रैप लगाएंगे, ट्रैप कैमरा होते हैं जंगल में टाइगर को फोटो लेने के लिए, एक उसके रास्ते पे आप ट्रैप कैमरा लगाएंगे, नया ट्रैप कैमरा लगाएंगे, तो वो 8 दिन आएगा नहीं वहाँ पे। वो दूर से देखेगा, उसको ट्रैप कैमरा को चक्कर मार के आगे जाएगा, वो सामने से जाएगा, बिकॉज इट्स सस्पेक्टिंग दैट मैन हैज डन समथिंग फॉर हिम, इट इज अ ट्रैप और समथिंग फॉर हिम। तो वहाँ वो ट्रैप लगाएंगे, और टाइगर जैसे चलते आया, वो ट्रैप में टाइगर का पैर जैसे आता है, वहाँ एक ट्रिप वायर रहता है, वो ट्रिप होता है वायर, और उसको जॉ होते हैं, ऐसी 2 रिंग्स होती है, वो रिंग्स टाइगर के पंजे को, जैसे 4 उंगलियां होती है और बड़ा पैड होता है, इसके बीच में वो फंदा बंद होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेरी सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लेग ऑफ द टाइगर, ऑफ द फुट ऑफ द टाइगर, लेट्स से पॉ ऑफ द टाइगर। जैसे वो फंदा बंद होता है तो ये छोटे छोटे फैलेंजेस है ना, उंगली के जो बोन्स होते हैं वो क्रश हो जाते हैं, और इट्स वेरी पेनफुल। द टाइगर रोर्स इन पेन, और ये लोग वहीं चुप के बैठे रहते हैं। तो जैसे ये रोर करता है, वो अगर ये कोर एरिया में है, उनको पता है कि ज़्यादा रोर करेगा तो पेट्रोलिंग वाले आ जाएंगे, कोई देखने वाले आ जाएगा, तो ये फट से अपने जहाँ भी चुप के बैठे वहाँ से आएंगे, फंसे हुए टाइगर पे दूर से 2-4 पत्थर मार के देखेंगे, वो और चिढ़ाएंगे उसको, कि चिढ़ा हुआ टाइगर फिर कोशिश करे और अपना पैर छुड़ाए, तब भी वो टाइगर पैर नहीं छुड़ा पाता। सो व्हेन दे रियलाइज कि नाउ इट स्टक, तो उसके पास में आएंगे, और ये 5-6 लोग रहेंगे, मेल मेंबर्स ही आएंगे मारने के लिए, उनके पास बड़ी बड़ी लाठियाँ रहेंगी, उसको क्लब्स बनाते हैं, यानी जिसको अपन डंडे को आखिरी सिरे में खीले और तार कस के उसको ऐसा, जिसको हम मराठी में सोटा बोलते हैं, वी कॉल इट क्लब्स, तो उसको बराबर सर के पीछे क्लब करके मारेंगे, या फिर गले में से स्पीयर डाल के उसको अंदर तक भोंप देंगे उसको इंटरनल ब्लीडिंग से, और वो बैकबोन तोड़ देंगे, और उसको इंस्टेंट वो कभी भी फंसे हुए टाइगर पे वार नहीं करेंगे, उसको फायर करेंगे नहीं, फायर आर्म बंदूक कोई यूज़ नहीं होता टाइगर पुचिंग में, इट्स अ मिथ, दिस इज ऑल डन बाय स्टिक्स, इट्स अनबिलीवेबल, इवन इन दिस डे एंड एज दे आर यूजिंग स्टिक्स टू किल टाइगर्स। द मोमेंट इट डाइज, टिल एज लॉन्ग एज द बॉडी इज वार्म, उसका फटफट खाल उतार लेंगे, इतना एक्सपर्ट रहते हैं कि एक मेल टाइगर वेइंग अराउंड 225-230 किलोज, 240 किलोज, अबाउट 12 फीट 4 इंचेस लॉन्ग, दैट बिग मेल, उसको आधे घंटे में खाल उतार लेंगे, 30 मिनट्स फटाफट, और दे विल द स्किन्ड कार्कास विल बी डिबोन्ड, दे विल रिमूव ईच एंड एवरी पीस ऑफ बोन एंड अप्लाई टेबल सॉल्ट ऑन इट, उसको सॉल्ट लगाएंगे बहुत सारा। तो और ये सॉल्ट लगाने से होता क्या है कि कार्निवोरस एनिमल्स में पार्ट्स पे स्मेल बहुत रहती है, तो सॉल्ट लगाने से केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि द स्मेल गेट्स सप्रेस्ड, पहले 72 घंटे उसका स्मेल नहीं आता है, तो ये 72 घंटे में उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। दैट वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ हाउ दे यूज टू डू इट, एंड इवन दे आर डूइंग इट, इवन नाउ दे आर डूइंग इट। So scary. It is scary. It is scary, and it is unfortunately it is unending. What has happened is over the years, these generations of poachers have passed on. ये जो expertise है टाइगर मारने का, ये generation of poachers ने अपने down the line आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को ट्रेन किया उसमें। और यहाँ हम एनफोर्समेंट की या मैनेजमेंट की बात करेंगे तो शायद एक बीट, फॉरेस्ट की बीट में अगर 5 साल पहले 2 टाइगर मारे गए थे किसी गैंग के द्वारा, तो 5 साल बाद आए हुए वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ 5 साल पहले क्या हुआ था। दैट इज द प्रॉब्लम।
सो हम इनको नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं, वही हमारा काम है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. देयर आर मेनी एजेंसीज आफ्टर 2006 बिग चाइना एक्सपोजे, चाइना एंड तिब्बत का जो बड़ा इन्वेस्टिगेशन जब दुनिया के सामने हमने लाया, और ये तब टाइगर टास्क फोर्स भी बनी थी, और तब के प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने बहुत इंटरेस्ट इसमें दिखाया था, और उन्होंने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया. टाइगर टास्क फोर्स ने कई एक प्रिस्क्रिप्शंस दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि टाइगर कंजर्वेशन में क्या किया जाना चाहिए. उसके चलते वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के आते थोड़ा थोड़ा बदलाव अभी आ रहा है, बट देयर इज स्टिल माइल्स टू कवर. सो व्हाट आर द चैलेंजेस? Well, the challenges are before enforcement. You are saying the biggest challenge is actionable intelligence. होता क्या है कि ये सारा वाइल्ड लाइफ क्राइम रिमोट एरिया में होता है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ कोई विटनेस नहीं है. पोचर्स आर गेटिंग स्मार्टर बाय द डे. उनको पता है कि आजकल आईटी का टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, फ़ोन इंटरसेप्ट हो रहे हैं, सीडीआर मिल रहा है, टावर लोकेशंस, रियल टाइम टावर लोकेशंस एजेंसीज को मिल रही है. सो दे आर डूइंग काउंटर इंटेलिजेंस, दे आर यूजिंग मेजर्स टू डिफ्लेक्ट ऑल दिस सर्वेलेंस एंड पीपल हु आर ट्राइंग टू ट्रैक देम. दे आर टेकिंग एवरी मेजर. दे आर इवन डूइंग काउंटर इंटेलिजेंस इस तरीके से कि अगर कोई उनमें से उनके कम्युनिटी से में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर अगर एजेंसी को दे रहा है, तो वो एक काउंटर रिवॉर्ड भी दे रहे हैं लोगों को कि हमारी जानकारी अगर आप देंगे तो हम उसकी जानकारी आप हमको दो, हम आपको इनाम देंगे. यानी इन्फॉर्मर के बारे में बताओ तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे. दैट इज काउंटर रिवर्स साइकोलॉजी. रिवर्स साइकोलॉजी. सो इट्स प्रीटी सीरियस एंड द चैलेंजेस आर, यस दे आर देयर, एंड दीज गाइज दे हैड अ फ्री रन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. बट 2013 में एक महाराष्ट्र में केस हुआ था, उसके चलते महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सीबीआई, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सारी एजेंसीज ने एक बड़ा अच्छा काम किया था. लगभग 65 ऑर्गेनाइज्ड पोचर्स वर अरेस्टेड देन. The first alerts were given by us that this is happening here, and they put their act together and they went after all these bad guys. उनको पकड़ा, काफ़ी साल तक वो जेल में भी रहे, कन्विक्शंस भी हुए उसमें. और फिर उस कम्युनिटी ने एक डिसीजन लिया, कटनी गैंग्स ने, कि हम 10 साल हम अभी टाइगर नहीं मारेंगे. उन्होंने टाइगर मारना लिटरली बंद कर दिया. वो ट्रेंड लगभग 10 साल चला, 2013 से लेकर 2023 तक वो ट्रेंड चला. So you can see it is actually, you can notice this in the tiger census results of 2022. भारत के पूरे 4 मेजर टाइगर लैंडस्केप में से सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप जो था उसकी पॉपुलेशन 18% राइज हुई. बट 2023 में हरियाणा के गैंग्स ने ये बात उनको पता चली कि यार यहाँ तो बहुत टाइगर्स है, चलो लेट्स गो टू तड़ोबा, लेट्स गो टू महाराष्ट्र, लेट्स गो टू विदर्भा, एंड दे केम हियर एंड दे स्टार्टेड बम्पिंग ऑफ टाइगर्स. So हमारा Jay was not taken by I mean, as far as I know, Jay was not a victim of organized poachers. He was a victim probably of local poaching. It's an unsolved case yet, but that is my there are many hunch. unsolved cases. There are many unsolved cases. Yes, there are all mostly local poaching में भी यही होता है ना. टाइगर्स के सामने 2 प्रॉब्लम्स है. एक तो ऑर्गेनाइज्ड पोचर्स है और दूसरा है लोकल पोचर्स. लोकल पोचर्स क्या कर रहे हैं? करंट लगाएंगे सुअर मारने के लिए, चीतल, हिरन मारने के लिए, और रात को तार लगा के रख देंगे. और कई बार टाइगर्स वहाँ, सुअर के पीछे टाइगर आ गया, सुअर तो बच के भाग गया, टाइगर मर गया. तो दैट इज ऑल्सो बिग थ्रेट. इलेक्ट्रिक्यूशन इज द सेकंड बिगेस्ट थ्रेट फॉर टाइगर्स. So how do local communities and economic factors play an important role in preventing the poaching? Yeah, about that. Local communities, without them हम कंजर्वेशन नहीं कर सकते. देखिए क्या है कि अगर आप कंजर्वेशन का डायरेक्ट बेनिफिट कम्युनिटीज़ को, कैश बेनिफिट कम्युनिटीज़ को वहीं मिल सकता है जहाँ कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, राइट? जैसे पार्क के सफारी और ये गेट्स वगैरह जो है, वहाँ पे जो एक टूरिज्म का क्लस्टर बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है, उसमें एम्प्लॉयमेंट और उसमें जो मिलने वाले जो रोज़गार या पैसा है वो कम्युनिटीज़ में जा रहा है. पर जो एरियाज़ में टूरिज्म है नहीं, वहाँ पे कंजर्वेशन का क्या बेनिफिट है? नहीं है. वो कंजर्वेशन का बेनिफिट इनडायरेक्ट है, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता. तो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. हमने इसको ऐसा एक स्कीम लॉन्च की है कि नॉट जस्ट वाइल्ड लाइफ पोचिंग,
कोई भी वाइल्ड लाइफ क्राइम या कोई भी क्राइम जो नेचर के खिलाफ है, जिसमें रेत खनन हो गया, पेड़ कटाई हो गई, एनक्रोचमेंट हो गया, शिकार हो गया, बर्ड्स पकड़ना हो गया, इलीगल फिशिंग हो गया, ये इस तरीके के नेचर के अगेंस्ट जो भी क्राइम है, अगर हम गांव के लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि आप इसके बारे में सूचना दो, हम आपको इसके लिए रिवॉर्ड देंगे। हुआ क्या है कि कंजर्वेशन मूवमेंट नया नहीं है, 50 साल से ज़्यादा हो गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आके 50 साल से ज़्यादा हो गए। अब जितने बुरे लोग हैं दुनिया में, उतने अच्छे भी तो लोग हैं। तो अगर हम अच्छे लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे और उनको एक रास्ता देंगे कि आप अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको कुछ न कुछ पैसा इसमें से मिलेगा, तो वी आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट कैनवास दैट स्कीम। सो ये हम जो सफारीज में हम जाते हैं, तो ये सफारीज से हमको कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं? आपको एक एंटरटेनमेंट के अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई एजुकेशन और अवेयरनेस के अलावा इसमें कोई बेनिफिट है। ये सफारी जो है, it is only a small window to conservation. They are trying to, it is an attempt for, for people to go and learn more about क्या है जंगल, क्या है टाइगर, क्या है वाइल्ड लाइफ, क्या है ये वेब ऑफ लाइफ, क्या है, व्हाट इज द फूड चेन, व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट। इसका एक विंडो में से आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि रियल में क्या है। बाकी किताबों में तो सब दिया है, आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं की किताब पढ़ लीजिए तो एनवायरमेंटल साइंस के स्टडीज में सारा दिया हुआ है, बट दिस इज अ रियल शोकेस कि हाउ द वेव ऑफ लाइफ वर्क्स, व्हाई टाइगर्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ दे लिव इन द फॉरेस्ट, उसका एक नजरिया है। एजुकेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन। इट्स and people take it more as entertainment. Yeah, that is actually kind of unfortunate कि conservation begins at home, like charity, conservation begins at home, and we can, I mean, though it is a very it's not very exactly urban related, अगर tigers खत्म हो जाए तो there is not going to be any direct impact on the urban life, but if you really love nature and if you really love wildlife and you really want to contribute to it, I would suggest you can do a couple of things. Abide by all rules of the safari. Abide by all the rules of the area. I see many people going to these fancy resorts and hotels and lodges, and their destination wedding is now a craze. They play unusually loud DJ musics in wildlife, in the heart of next to a wildlife safari gate. There is a resort, and there is DJ blaring out all night. People are dancing to Bollywood tunes because it's a wedding. You can't say anything. इस पे बैन है, but the money might, they buy their things. They violate. These are violations. But if you are really conservationist at heart, you should abide by all these set of rules. And to contribute to conservation, you can think of your carbon footprint of your every single activity. आप क्या कर रहे हैं, उसका आज कार्बन फुटप्रिंट कितना आ रहा है। आप खाली बिल्ली घूमने जा रहे हैं, यू आर बर्निंग डीजल। आप जिस कमरे में नहीं है उस कमरे का लाइट बंद कर सकते हैं, फैन बंद कर सकते हैं। आपका हर चीज़ का जो कंजम्पशन है उसको आप लिमिट कर सकते हैं। पानी से लेकर रिसोर्सेस बाकी जो है नेचुरल, उसको आप एक क्वाइटली इन द बैक ऑफ योर माइंड जस्ट ट्राई टू असेस कि क्या मैं ये एक्शन कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं जल गया, ये ज़्यादा तो नहीं कंज्यूम हो गया, हाउ कैन आई कट इट डाउन। अगर इतना भी हम सोचना शुरू करें ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये आजकल के बच्चों ने भी ये समझना चाहिए कि हम अगर घर में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दूर तक उसका इफेक्ट जंगलों तक है। एग्जैक्टली। तो बच्चों ने ये समझना चाहिए, लाइट पंखे बंद करो, कार्बन एमिशन कम करो। एग्जैक्टली। एंड दैट विल अफेक्ट टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द। एग्जैक्टली। ये टाइगर रिजर्व्स एक्चुअली क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये इसलिए है ना, ये कार्बन एब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि ये वास्ट पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है। ये देयर आर कैचमेंट्स ऑफ बिग रिवर्स और देयर ट्रिब्यूटरीज। They are contributing in water conservation, they are contributing in soil conservation, they are contributing in maintaining the quality of air that we breathe in cities. These are our lungs. Correct. Sir, direct message to our audience. What would you like to tell? What to do and what not to do? Well, if you are going for a safari, try to use it as an educational tour.
abide by all the rules of the park. If you're going to a resort, ensure that you are again abiding by all the rules by not playing those loud music things or going to resorts which have rain dance and swimming pools. That is not a good thing to do, because water conservation is very important. And I would suggest that every man, every person, every educated person who is interested in nature and particularly conserving the nature should think of his carbon contribution of his every act, even if he is living in a city. Just think of why, if you're going to some place nearby, you could have gone walking, you could have taken a bicycle instead of taking a big car. Just think of how much carbon you have created So in your every reducing the action. carbon emission. Yeah. And it can be small. Conservation starts at home. It begins at home. Has to be a habit. It is a way of life. You can switch off your lights when they are not needed. You can switch off your ACs and fans when you are not required, when they are not required. You can recycle many things. You can dispose of many things responsibly. You try to recycle those things. And just in the back of mind, just keep on thinking, what different I could have done this thing which would have reduced the carbon that it has created. Thank you for the beautiful insight towards wildlife conservation, and I hope our audience will definitely follow at least few 5 points you have given at the end. I hope so too. Thank you so much, and I really from my heart I request the audience to do so. Please follow and abide the rules. Thank you so much.